Welcome students. In this video we are going to continue from where I left in the last video, where we were discussing the various functions various built-in functions related to strings. Okay, so the next function is title function. Title function returns a copy of the invoking string after capitalizing the first letter of each word and converting all the remaining characters into lowercase. So, children, you remember there was a function named capitalize function which used to convert the invoking sentence into sentence case. What happened there? It used to make the first letter of the sentence as capital and remaining all the characters were in small. Okay, but title function, what it does? It returns a copy of the invoking string after capitalizing first letter of each word of the sentence and converting all the remaining characters into lower case. So here in यहाँ पे क्या होगा, सेंटेंस का हर एक वर्ड जो है उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा और रिमेनिंग लेटर्स उसके स्मॉल केस में हो जाएंगे. हाउ वी यूज दिस फंक्शन? वी सिंपली write the name of the string object, okay, like you can see here, and then we call the title function. So it works on this invoking string object. You don't have to pass any parameters in this. Okay, let us see the practical implementation of this function. So here you can see I have invoked this function with the help of this string. You can store this string in a variable and then call it with the help of that name also. यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्ट्रिंग से ही टाइटल फंक्शन को कॉल कर लिया. आप चाहें तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके फिर उस वेरिएबल से टाइटल फंक्शन को कॉल कर लें. तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो मेरी स्ट्रिंग है, माई नेम इज़ रविकांत. सो फ्यू लेटर्स आर कैपिटल ऑलरेडी, ओके, एंड फ्यू आर इन स्मॉल. अब ये टाइटल फंक्शन क्या करेगा, हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल बना देगा और रिमेनिंग लेटर्स को स्मॉल में कर देगा. तो देखिए एम कैपिटल था, कैपिटल रहा, फिर एन को कैपिटल होना चाहिए तो कन्वर्ट कर दिया, फिर आई को कैपिटल होना चाहिए, कन्वर्ट कर दिया, फिर रवि का आर कैपिटल होना चाहिए, आर कैपिटल है, लेकिन वी और आई ये कैपिटल थे लेकिन उनको देखो कैसे कन्वर्ट किया गया स्मॉल में. तो ये सेंटेंस के हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करके और रिमेनिंग को स्मॉल करके आपको रिजल्टेंट स्ट्रिंग दे देता है. सी अनदर केस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस. टाइटल में किया तो आई और पी, ये वाला आई और ये वाला पी कैपिटल हो जाएंगे और बाकी सब स्मॉल में हो जाएंगे. सो सी दिस इज द आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज टाइटल फंक्शन whose purpose is to check whether the invoking string is in title case or not. So right now you have learned what is the title case of the sentence in which each word is having the first letter as capital. Okay, so see here how we use this function. We call this function using string object and we don't need to pass any parameter and it returns me a boolean value. Remember, because it is a function that is going to check, and if the result is found to be if it is found to be in the title case, it will return true. If not found in the title case, it will return false. Now see the practical implementation. Here I gave the string as my name is Ravi and all the letters means all the first letter of the word is already capital and remaining are already in small. So you got the answer as true. But in this case, see, no pain, no gain. So N is capital but P, here P is not capital. Then this G is not capital. So because of this problem, I got the answer as false. Clear? So these were the various built-in functions related to strings. Now we are going to discuss certain elements of string module. Okay,
So just like you have random module, you have statistics module, you have math module, okay, in the same way we have string module also. तो अभी तक हमने जितने फंक्शंस पढ़े वो सारे फंक्शंस इनबिल्ट फंक्शंस थे, मतलब आपको उनके लिए स्ट्रिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट करना ज़रूरी नहीं था, आपको करना ही नहीं चाहिए. वाई? बिकॉज इफ़ यू डू सो दैट इम्पोर्ट स्टेटमेंट विल बी यूजलेस. ठीक है, तो ये जो अब जो हम फंक्शन पढ़ेंगे, एलिमेंट्स पढ़ेंगे, दे आर बिलोंगिंग टू स्ट्रिंग मॉड्यूल एंड फॉर यूजिंग देम यू हैव टू इम्पोर्ट द स्ट्रिंग मॉड्यूल. ओके, सो द फर्स्ट फंक्शन इज कैप वर्ड्स फंक्शन. अब ये क्या करता है? इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द इन्वोकिंग स्ट्रिंग आफ्टर कैपिटलाइजिंग फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड. Now you must be thinking that title function also does the same. वो भी आपकी इन्वोकिंग स्ट्रिंग के हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर देता था और ये भी वही कर रहा है, लेकिन इसके करने का तरीका अलग होता है और इसका आप जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखोगे सो देन यू विल फाइंड सम अदर डिफरेंसेस टू. सो सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ इट वर्क्स by first splitting the invoking string using split function. split function से पहले वो invoking string को split कर लेता है in the form of list, उसको मिल जाती है. और separator character किसे माना जाता है? स्पेस को माना जाता है बाय डिफ़ॉल्ट. तो स्प्लिट में देख हम कुछ भी पास नहीं करेंगे, ये कुछ भी पास नहीं करता, तो ये स्पेस के हिसाब से आपके एलिमेंट्स स्प्लिट हो जाते हैं और लिस्ट में स्टोर हो जाते हैं. देन व्हाट इट डज, इट कैपिटलाइजेस ईच एलिमेंट using capitalize function. So what will capitalize function will do? It will convert the first letter of each element of the list in capital and remaining in small. यानी कि लिस्ट के हर एलिमेंट पे कैपिटलाइज फंक्शन इम्प्लीमेंट होगा. ओके, एंड देन you will get the final list and then all those elements will be joined with the help of join function to get the resultant string. Clear? Now how to use this function? Remember, you need to import string module. Okay, you have to import string module to utilize it. And how we use it? We write string dot cap words str comma sep is equal to none. Now here string is not any string object like it used to happen in case of title and title function. वहाँ पे आप string object से कॉल करते थे उनको. यहाँ पे ये जो string है ये string module का नेम है. ठीक है, and then capword function is called. हम इसमें string पास करते हैं and second argument is sep. You will come to know its meaning later on. So str is the string to be operated. ठीक है. Now what is sep? ये जो आर्ग्यूमेंट है if absent और none, अगर इसकी वैल्यू नहीं देते हैं आप या फिर none देते हैं, then it removes all the leading as well as trailing spaces and replaces all the inside spaces by a single space. यानी कि अगर आपने इसकी वैल्यू नहीं दी या फिर इसकी वैल्यू none दे दी तो ये सारे लीडिंग यानी कि बिगनिंग में आने वाली ब्लैंक स्पेसेस और एंड में आने वाली ब्लैंक स्पेसेस दोनों को ट्रिम कर देगा, मतलब रिमूव कर देगा. और जो इनसाइड स्पेसेस हैं, यहाँ देखिए इनसाइड स्पेसेस, ये इन स्पेसेस को अगर ये स्पेसेस मोर देन वन है तो उनको सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देगा. यू विल कम टू नो, यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग ली है. ठीक है, माई नेम इज़ राजन शर्मा. ठीक है, अब इसको मैंने एस डॉट टाइटल किया, मतलब एस हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है. टाइटल फंक्शन को देखिए हमने एस वेरिएबल से कॉल किया है. सो एस हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है जिसको टाइटल में कन्वर्ट करनी. तो देखिए इसने क्या रिजल्ट दिया, माई नेम इज़ राजन शर्मा विद MNIR एंड S कैपिटल.
विच आर द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। ठीक है, फिर जब मुझे यही काम अगर स्ट्रिंग मॉड्यूल के कैप वर्ड्स फंक्शन से करना होगा तो पहले मुझे स्ट्रिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, उसके बाद ही मैं कैप वर्ड्स फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ। और कैप वर्ड फंक्शन में मैंने एस पास किया तो देखिए मुझे वही रिजल्ट मिल रहा है जो कि टाइटल फंक्शन दे रहा था। तो अब आपको लग रहा होगा कि जब टाइटल फंक्शन वही काम करता है तो हम कैप वर्ड्स फंक्शन को क्यों यूज़ करें। तो देखिए इसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सबसे पहले मैंने देखिए क्या किया है, स्ट्रिंग डॉट कैप वर्ड्स एस कॉमा सेप इज इक्वल टू ए, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सेपरेटर जो था वर्ड्स का वो स्पेस था, अब की बार मेरा सेपरेटर क्या है, स्मॉल ए है। ठीक है, तो क्या होगा कि ए के बाद आने वाले हर कैरेक्टर को वो कैपिटल में कर देगा और पहला लेटर भी कैपिटल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एम कैपिटल हुआ। देखो मैंने यहाँ पे आपको शो किया है कि अगर आप एस डॉट स्प्लिट ए करें तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है। अब देखो माई, आपको मालूम है एन के बाद देखो यहाँ पे ए आ रहा है। ठीक है, तो ए तो हम लेंगे नहीं, स्प्लिट फंक्शन में सेपरेटर कैरेक्टर ओमिट हो जाता है और जो रिजल्ट आती रिजल्टेंट लिस्ट आती है उसका हर एक एलिमेंट इस सेपरेटर कैरेक्टर को हटा के बनता है। तो पहला सेपरेटर कैरेक्टर हमारा माई सेपरेटर मीन्स पहला एलिमेंट लिस्ट का आएगा माई स्पेस एन, ये देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद हाँ ये मेरी लिस्ट थी ना, तो माई स्पेस एन आया, फिर एम से लेके आर तक आएगा। ठीक है, एम से लेके आर तक सेकेंड एलिमेंट आया। अब थर्ड एलिमेंट देखो क्या है, इस वाले ए और इस वाले ए के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो नल स्ट्रिंग जैसा आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस वाले ए के बाद आएगा जे, क्योंकि जे के बाद फिर से ए आ गया। फिर उसके बाद आएगा एन से लेके एच तक, ये आ गया। फिर आर एम आएगा। ठीक है, आर एम आया, फिर ए सेपरेटर कैरेक्टर, उसके बाद एक नल स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहले तो स्प्लिट ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया। अब इसके हर एलिमेंट के पहले लेटर को ये कैपिटल करेगा तो एम कैपिटल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एम कैपिटल है। फिर अगला एलिमेंट है एम ई इज़ आर, तो एम ई का एम देखो यहाँ कैपिटल हो गया। अब यहाँ पे रिजल्ट में आपको ध्यान से देखना है, यहाँ एम कैपिटल हो गया। फिर नल स्ट्रिंग में तो कुछ भी कैपिटल नहीं होगा। फिर जे, तो जे कैपिटल हो गया देखिए। फिर एन कैपिटल होना चाहिए, देखो एन कैपिटल है। फिर आर कैपिटल होना चाहिए, देखो आर कैपिटल है। ठीक है, तो दिस वे कैप वर्ड्स फंक्शन performs its work. And after this p dot title function, see what I have done here, p dot title। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस शो कर रही हूँ कि टाइटल फंक्शन और कैप वर्ड्स फंक्शन में क्या अंतर आता है। यहाँ पे देखो जो मेरी स्ट्रिंग है आई स्टडी, आई के पहले भी स्पेसेस हैं, स्कूल के बाद भी स्पेसेस हैं और RLB और स्कूल के बीच में मल्टीपल स्पेसेस हैं। ठीक है, तो अगर आपने टाइटल से किया, देखो वो कुछ भी नहीं करता, वो हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर देगा, बस इतना काम वो करता है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर आपने कैप वर्ड्स फंक्शन में दिया तो देखिए इसने क्या किया, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव कर दिया और साथ में ये जो इनसाइड स्पेसेस थी अगर ये एक से ज़्यादा है तो उसको सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे टाइटल और कैप वर्ड्स फंक्शन का आपको अंतर नज़र आ रहा है कि टाइटल फंक्शन ने कुछ भी नहीं किया, टाइटल फंक्शन ने आपकी इन स्पेसेस को भी रखा, इन स्पेसेस को भी रखा और इन स्पेसेस को भी रखा, बस उसने हर लेटर, हर पहले लेटर को कैपिटल कर दिया, इतना काम उसने किया। ठीक है, लेकिन कैप वर्ड्स फंक्शन ने लीडिंग ट्रेलिंग स्पेसेस भी हटाई, बीच की स्पेसेस को सिंगल स्पेस से रिप्लेस भी किया और हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल भी किया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइटल फंक्शन एंड कैप वर्ड्स फंक्शन।
Then last is children, along with functions, string module has certain constants also. जैसे मैथ मॉड्यूल में पाई और ई कांस्टेंट होता है, वैसे स्ट्रिंग मॉड्यूल में हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स हैं. पहला है ASCII अंडरस्कोर लेटर्स. ये क्या करता है? रिटर्न्स अ स्ट्रिंग कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ कैपिटल एज वेल एज स्मॉल अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, तो इसमें आपको सारे कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट जो होते हैं ASCII के, ये सब रिटर्न हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग. प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में आपको समझ में आएगा. फिर नेक्स्ट है स्ट्रिंग डॉट ASCII लोअर केस. ये क्या करता है? ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है जिसमें सारे लोअर केस लेटर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ABCDEFGHIJK से Z तक. फिर स्ट्रिंग डॉट ASCII अंडरस्कोर अपर केस, ये मुझे लोअर केस का ऑपोजिट वर्क देता है, यानी कि ABCD till Z. और जो ये ASCII लेटर्स है, इसमें क्या आएगा? इन दोनों का, इसका मतलब इसका और इसका कॉम्बिनेशन आएगा. ठीक है. स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स में क्या होता है? इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल द डिजिट्स. यहाँ देखिए सारी डिजिट्स जो भी हैं वो आती हैं. हेक्स डिजिट्स में क्या क्या आता है? हेक्स डिजिट में हमारा 0 से 9 तक आता है, उसके बाद कैपिटल ABCDEF एंड स्मॉल ABCDEF, ये सारे हमारे हेक्स डिजिट्स माने जाते हैं, इसलिए इट रिटर्न्स दिस टाइप ऑफ स्ट्रिंग. फिर ऑक्ट डिजिट्स में आपको मालूम है कि इट कंसिस्ट ऑफ 0 to 7 ओनली. ठीक है. और पंक्चुएशन में देखिए सारे पंक्चुएशंस आ गए. सो दीज आर द वेरियस एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन एक्सेस द ASCII कैरेक्टर्स ऑफ योर पाइथन लैंग्वेज. ना व्हाट इज़ द यूटिलाइजेशन? देखो यहाँ पे तो मैंने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाया है. स्ट्रिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया. स्ट्रिंग डॉट ASCII अंडरस्कोर लोअर केस, सी व्हाट रिजल्ट आई एम गेटिंग. लेटर्स किया तो सारे लेटर्स मिल गए. डिजिट्स किया तो सारे डिजिट्स मिली. हेक्स डिजिट किया तो सारे हेक्साडेसिमल डिजिट्स मिले. और पंक्चुएशन किया तो सारे पंक्चुएशन मार्क्स मिले. तो ये मेरे कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हम प्रोग्राम में यूटिलाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द प्रोग्राम ऑफ पैनग्राम स्ट्रिंग, क्लियर, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू ऑल. सो देयर आई डिड दिस प्रोग्राम. वहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम को विदाउट स्ट्रिंग मॉड्यूल किया था, अप्लाइंग द लॉजिक. लेकिन अब आप इस स्ट्रिंग मॉड्यूल के एलिमेंट को यूज़ करके आप उस प्रोग्राम को फिर से कर सकते हैं. ठीक है. सो these are the various elements of string module that are there in your syllabus. So I hope all of you must have understood these elements. If you have any confusion, then you can tell me in the comment section. Thank you so much.